apple tree is called Malus domestica. It is the member of rose family. It is sweet and pomaceous fruit. Apple is cultivated worldwide. The tree originated in Central Asia, where its ancestor Malus sieversius is still found today. Apple have been grown for thousands of years in Asia and Europe and were brought to North America by European colonists. Apple have religious and mythological significance in many cultures, including Norse, Greek, and European Christian traditions. According to 2014 reports, worldwide apple production was 84.6 million ton, and China covers 48% of total. India is second largest country in fruit production, followed by China. According to Food and Agriculture Organization of United States 2014, in the production of apple, India stands at 5th position over the world. This report says that every year India produces 22,03,400 tons of apples. It is deciduous tree. The height of plants stand 2 to 5 meter tall and up to 12 meter. The leaves are alternately arranged, dark green colored, simple oval with serrated margins. Blossoms are produced in spring with the budding of leaves. The fruit mature in late summer or autumn. The skin of ripe apple is gradually red, yellow, green and pink. The skin is covered with protective layer of epicuticular wax. A typical apple serving weight is 250 gram and provide 126 calories. Apples are eaten raw. The whole fruit, including the skin, is suitable for human consumption except the seed. In India, apple is mostly grown in the northwestern Indian state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh hills. Himachal is called Apple State because country's first apple were cultivated here. This is Rajat Nishan Biotech India. It is a big name in northern India as a rootstock developer. It was established in 2006 at Dhadol village near Ghumarvi, district Bilaspur, Himachal Pradesh. This lab is not only dealing with apple rootstock but also producing cherry and pear rootstock too. And farmers from the different part of India are coming for buying these plants. मेरा नाम विनोद सोनी है। ये गांव पडियालग है। सन 2006 में हमने ये लेबोरेटरी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सहायता से ये एस्टेब्लिश की, जिसमें हमारे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी तथा IHBT पालमपुर की बहुत बड़ी हेल्प रही। तो वो बहुत सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर्स जो लोग थे उनकी काफ़ी सहायता से हमने ये लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की। और धीरे धीरे करते करते ये मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद सोचते थे कि कहीं जॉब करेंगे, तो पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को देखते हुए कि अपने घर में कोई अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, तो कुछ प्रकृति से, नेचर से कुछ लगाव भी था। कुछ प्लांट्स की हमारे हिमाचल में 6 लाख परिवार जो हैं वो सेब से जुड़े हैं, तो हमने सेब के बारे में सोचा कि हम सेब के लिए कुछ काम करेंगे। The complete laboratory is spread in over 8-acre land and have 70 to 80 people in this laboratory. This lab is technically and financially supported by Horticulture Department, Y.S. Parmar University, Nauni and National Horticulture Board. This lab developed as an important department in 2012, that is the tissue culture lab with cost nearly 1 crore. This project is certified from Department of Biotechnology, Government of India. This is single project in all over India, which is doing work in virus-free apple rootstock and certified from DBT. By this project, they are producing 8 to 10 lakh plants annually. लगभग 100 बीघे लैंड हमारे पास यहाँ पे लोगों की लीज पे ले रखी है। 15 से 20 बीघे लैंड अपना भी है, तथा इस काम को करते करते अब हम जहाँ भी प्लांटिंग मटेरियल दे रहे हैं वहाँ के किसान बागवान बहुत खुश हैं, तथा बागवानों को विद इन 2 ईयर फ्रूटिंग पे प्लांट आ जाता है।
सबसे बड़ी एक जो हमने कामयाबी हासिल की है वो लो चिलिंग एप्पल वैरायटी। Rootstock is a plant which already has an established healthy root system used for grafting, cutting or budding from another plant. The plant's part being grafted onto the rootstock is usually called scion. ये देखिए आप, ये अभी मई महीना है और मई महीने का 17-18 तारीख को ये साइज फ्रूट का है। जून में अगर आप 15 तारीख तक देखेंगे तो ये पूरा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा एरिया भी गर्म एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाता है, लेकिन ये प्लांट तो 45 डिग्री तक भी सर्वाइव करता है। और इसको मैनेज करना 70 साल की उम्र में भी कोई आदमी इसके फ्रूट खुद तोड़ पाएगा। Apple rootstocks are referred to by numbers prefixed by letters indicating the developers of rootstocks. M designate Malling series developed stock East Malling Research Station in Caen, England. Collected clones of the Paradise stock from France in 1912, from which 24M were designated with no particular order to the rootstock characteristics. MM designates Malling Martin stock developed from joint breeding program by John Innes Institute in Merton, England. AMLA designate East Malling Long Aston Research Station, which took the M stock and developed virus-free version as AMLA 7 with a guaranteed virus-free stock. CG or G designate Cornell Geneva stocks, which were developed by the collaboration of the Cornell and USDA. M9. It is also very dwarfing root stock. Permanent stocking is required as routine feeding and watering. This is very susceptible to fire blight and can develop burnouts. M26 dwarfing, similar to M9 effect, although more vigorous and generally stronger. Susceptible to collar root and fire blight, cannot be planted in wet site. MM106, semi-dwarfing and semi-vigorous, most widely used for root stocks, highly susceptible to collar root. जो हिमाचल से जो वैरायटीज़ या इसके सेब निकलेगा वो यहाँ के अलावा देश के दूसरे भागों में भी पैदा किया जा सकता है। और हिमाचल में भी जो है हम ऐसी किस्में बाहर से लाए हैं जिनका फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छा है, कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है। और पहले क्योंकि एप्पल की जो कल्टीवेशन थी वो एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में कम से कम 10-15 मीटर का अंतर रहता था। अब हिमाचल में वर्ल्ड बैंक की एक प्रोजेक्ट आई है जिसमें अब हाई डेंसिटी प्लांटिंग हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो ड्वार्फ रूट स्टॉक पे है। वो उन एरिया में जहाँ पे इरिगेशन पानी अवेलेबल है वहाँ पे हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग्स लेकर के फिर एप्पल की जो पैदावार अभी जो 15-20 क्विंटल के बीच अभी है पर हेक्टेयर, फिर हाई डेंसिटी प्लांटिंग करने के बाद ये हमारी पैदावार जो है 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाएगी। Rajat Nishant Biotech is producing apple rootstock named as M7, M9, M793, MM111, MM106. Rajat Nishant Biotech is producing low chilling plant on rootstock named as Anna, HRMN99, Dorfest Golden, and is also producing high chilling plant on rootstocks as Super Chief, Jaromil, Red Can, Scarlet Spar 2. To develop virus and contamination free rootstocks in the large number is the best way to produce large number of plant, and it has been possible by the tissue culture technique. It is widely used to produce clones or plant by the method known as micropropagation. Tissue culture is the latest techniques of vegetative propagation. Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in plants.
Plant tissue culture is a collection of techniques used to maintain or grow plant cells, tissues or organ under sterile conditions on a nutrient culture medium. ये हम एप्पल का रूट स्टॉक है, ये MM सीरीज़ का मालिंग मॉल्टन सीरीज़ है। ये ईस्ट मॉलिंग स्टेशन इंग्लैंड से प्लांट आया है। इंग्लैंड से? जी सर। तो ये रूट स्टॉक है जो मालिंग मॉल्टन नाम के 2 डॉक्टर थे, उन्होंने ये तैयार किया था ईस्ट मॉलिंग स्टेशन इंग्लैंड में जी। अब ये हमारे पास भी जब आया है तो हम इस प्लांट से एक पौधे से लाखों पौधे बनाएंगे टिश्यू कल्चर के माध्यम से। ये रूट स्टॉक का हम एक पार्ट इसका काटते हैं, ये ऐसे हम लेते हैं इसका फ्रेश पार्ट जो जिसमें अभी अभी नया कोम्पल आया है, ये इसका हम पार्ट लेते हैं, इसको हम पानी में डिप करेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपरली अच्छी तरह वॉशिंग कर लेंगे। उसके बाद ये हम पेट्रो डिश के अंदर रख के, इसमें ये वायरस फ्री होता है, एक तो मदर प्लांट हमारा वायरस फ्री है, उसके बाद भी हम इसमें इसको प्रॉपरली वॉशिंग कर लेंगे टी पोल से और फ्रेश वाटर से। इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसको हम आपके सामने वहाँ लैमिनार एयरफ्लो टेबल के ऊपर इनैकुलेट करवाएंगे, जो कि टिश्यू कल्चरिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। The steps of tissue culture are preparation of tissue culture medium, sterilization of culture medium, instruments and tools, selection of explant and its sterilization, inoculation of explant on culture medium, incubation for growth, acclimatization of plantlets, and transfer to pots for hardening. ये मीडिया बनाने की तैयारी हो रही है। इसमें आरओ का पानी लेते हैं, स्टरलाइज्ड वाटर लेते हैं। उसके बाद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का वेट करते हैं वेइंग स्केल से। सर ये हम MS मीडियम तैयार करते हैं, इसमें जो भी मिट्टी में मतलब वो जो भी पोषक तत्व हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। इसमें अमोनियम नाइट्रेट है, हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम डाइहाइड्रोजन है, ये सारे मैक्रोन्यूट्रेंट में हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं। और इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट में जो भी मतलब इसमें मिनिमम चीज़ें हैं वो सारी हमने माइक्रोन्यूट्रेंट के रूप में हमने इसमें डाल रखी हैं। इसमें सोडियम मॉलरेट वगैरह, ग्लाइसिन वगैरह सब कुछ इसमें डाला हुआ है, प्लस इसमें हम ग्रोथ रेगुलेटर भी डालते हैं। वो जो मीडिया वहाँ पे बनाया उसके अंदर पोरिंग करते हैं हम, ये 60 ml इस बोतल के अंदर ये डालते हैं। उसके बाद इसको ये पॉलीप्रोपिलीन का कैप लगा देते हैं, इसमें ये न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हमने। उसके बाद इसको ऑटोक्लेविंग करना होता है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस हो रहता है। 121 डिग्री टेम्परेचर पर 15 पाउंड प्रेशर पर हम इसको इस ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते हैं। ये लैमिनार एयरफ्लो टेबल है जी। ये ह्यूमन बीइंग के ऑपरेशन थिएटर से 10 टाइम ज़्यादा सेंसिटिव ये लैमिनार एयरफ्लो टेबल होता है। तो इसमें हमारे टेक्नीशियन, हमने वहाँ से टिश्यू लिया है मदर प्लांट से, तो हमारे टेक्नीशियन ये करके दिखाएंगे कि इस टिश्यू को इनैकुलेट करेंगे, ये इन विट्रो कल्चर फिर ये बन जाएगा। The collected twigs transferred to sterilized petri plates. The sterilization is must to prevent contamination, and collected twigs are cut into small pieces with the help of blade. The pieces are then transferred to culture medium with the help of forceps. The culture bottle then placed into growth chamber. ये मदर प्लांट है, इसमें जो टिश्यू है ये मल्टीप्लिकेशन फेज में है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टिश्यू रखा हुआ है, तो इसको हम जैसे कि दिस इज स्टेरिलाइजर, तो यहाँ से हमने अपना ब्लेड लिया और उसके बाद टिश्यू ओके, हियर इज द टिश्यू नाउ। और इसमें इनॉक्यूलेट कर दिया फ्रेश जार। डॉक्टर साहब ये हमारा ग्रोथ रूम है, यहाँ पर इसको जैसा क्लाइमेट, जैसा टेम्परेचर, जैसी ह्यूमिडिटी चाहिए
वैसा यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइडेड है। जैसे ये ट्यूब लाइट आप देख रहे हैं, तो ये ट्यूब लाइट 16 घंटे ऑन रहता है, 8 घंटे बंद रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट सब कंट्रोल्ड कंडीशन है। ये जैसे इन विट्रो कल्चर है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी या एक बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, वैसे ही जैसे अभी हमने ये इनोकुलेट किया, तो ये इस लाइट्स के अंदर, इस टेम्परेचर के अंदर रहेगा। तो ये कैपिलरी रिएक्शन से मीडिया को शक करेगा, भोजन ये जब खाएगा तो धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट करेगा। इसका 2.5 महीने का टोटल सर्कल रहता है। ये एप्पल है, बूढ़ी प्लांट है, तो ये 2.5 महीने में इतना बड़ा हो जाता है। एक बोतल में हमारे पास 20-25 प्लांट बन जाते हैं। अच्छा, फिर से हम इसको निकालेंगे लैमिनार एयरफ्लो टेबल के ऊपर, फिर इसके और पीसेज, इसके टुकड़े कर देंगे, जिसको भी हम टिश्यू बोलेंगे। उन टिश्यू को नेक्स्ट बोतल के अंदर डाल देंगे, जिसको हम रूटिंग मीडिया बोलते हैं। अभी तक इस बोतल के अंदर नीचे को रूट्स नहीं थी, आप ये देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसमें कोई भी रूट्स नहीं है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फेज इसको हम बोलते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रूटिंग हार्मोन डिफरेंट हम डालते हैं। तो अब ये 1 महीने का ये प्रोसेस रहता है। 1 महीने में ये इसमें रूट्स आ गए, ये दिखाई दे रहा है ना। जी। ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, इसमें रूट्स नहीं है। इसको तो हमने काटना है, फिर से नेक्स्ट बोतल में डालना है। इसको और मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इसमें रूट ले लिया तो वो वेस्ट हो जाएंगी। तो हम जब ये पूरा फाइनल स्टेज पे जाएगा, अभी इसका फाइनल स्टेज है, इसमें रूट्स आ गया, तो अब ये प्लांट बाहर निकलने के लिए तैयार है। माय नेम रजनी। इस लैब में एक्चुअली कंटामिनेशन चेकआउट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और फंगस वगैरह, जैसे इन जार्स में फंगस वगैरह ग्रो हो रही है, तो इनको हम बाहर निकालते हैं। इन जार को हर दिन चेक करते हैं, और जो भी कंटामिनेशन हुई होती है उन जार्स को बाहर निकालते हैं। ये हार्डनिंग चैम्बर है सर जी। हार्डनिंग चैम्बर में क्या होता है, जो प्लांट आपने वहाँ पे देखा वो अभी देखेंगे अगर आप, तो ये इन्होंने निकाला है इस बोतल से। तो जो मैंने आपको लेबोरेटरी के अंदर दिखाया था, ऐसे प्लांट्स, उसमें प्रॉपर रूट्स हैं। तो दूसरा भी प्लांट आप निकालेंगे ज़रा, तो इसमें प्रॉपर रूट्स होती हैं, ये आप देखेंगे जो हमने वहाँ लैब के अंदर देखा। ये रूटिंग वाला प्लांट है, ये अपने आप में कंप्लीट प्लांट है। इसमें जड़ है, तना है और लीफ है। तो इसको अभी हम प्री हार्डनिंग का इसका टाइम है, तो प्री हार्डनिंग करेंगे। The prepared plants are placed into greenhouse for the hardening processes. The nave plants are transferred to plastic pots filled with organic manure. The organic manure contains micro and macronutrient for the proper nourishment of the developed plant. These pots are then transferred to huge trays. The temperature of greenhouse should be properly controlled through air conditioner. हिमाचल प्रदेश के सेब का जो है पहले से ही काफ़ी नाम है, और ख़ास करके जो हमारा कोटगढ़ का आगे जो काफ़ी हाइट पे है, किन्नौर में चांगो का जो सेब है वो सबसे अच्छा गिना जाता है। लेकिन यहाँ एक जैसा आपने भी कहा कि घुमारवीं में भी जो है वो सेब का उत्पादन होना शुरू हुआ है। बहुत एक अनोखी बात भी लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कितना टेम्परेचर है, बहुत गर्म। दिल्ली से मुश्किल से 3-4 डिग्री कम होगा, और यहाँ पर सेब होना शुरू हुआ है। काफ़ी लोगों ने जो है वो सेब के पौधे लगा रखे हैं, और एक नई उम्मीद जो है वो लोगों में जगी है कि जो हमारा प्लेन इलाका है यहाँ पे भी सेब हो सकता है, और इससे जहाँ पे जो हमारे एप्पल ग्रोअर हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, और अप्रत्यक्ष तौर पे काफ़ी लोगों को जो है वो रोज़गार की संभावना भी है। Rootstock of apple and other varieties produced by Rajat Biotech India Lab are not only beneficial for the farmer of Himachal Pradesh, but nowadays when low chilling apple has been introduced, the rootstock of this lab is became the backbone of farmer of many states of India. This lab has created a revolutionary step towards apple. जो लो चिलिंग वैरायटी है जो यहाँ के लिए हमारे एरिया में काफ़ी सूटेबल है, इसमें भी टिश्यू कल्चर लैब में अन्ना और डॉक्टर गोल्डन तैयार कर रहे हैं, और हमने जो है ये जो लो चिलिंग वैरायटी है हरमन भी तैयार कर रहा है, अन्ना और डॉक्टर गोल्डन वहाँ भी तैयार कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा बाहर जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में सप्लाई कर रहे हैं।
ये फ्रूट अभी अभी हमारे पेड़ से तोड़ा है, तो कितना ये हेल्दी फ्रूट है मई महीने के मिड में। ये मई मिड में कितना हेल्दी फ्रूट है, विद लीफ अभी अभी इन्होंने तोड़ा है। आप इसका साइज़ और कलर क्वालिटी बहुत अच्छा है, जो हमारे लोअर हिमाचल के लिए, गर्म एरिया के लिए बहुत अच्छा ये लोगों के लिए रिस्पॉन्स है। हिमाचल की बात करें, 1,10,000 हेक्टेयर एरिया सेब के अंतर्गत आ गया हुआ है, और जो प्रोडक्शन है इसका हर साल, वो इस साल का जो प्रोडक्शन था वो 7.7 लाख टन प्रोडक्शन एप्पल का, हाँ प्रोडक्शन इसका सेब का है। हमारी पूरी स्टेट में जो 45% जो एरिया है, पूरी एरिया जो जिसको बोले हम अंडर डिफरेंट फ्रूट्स, उसमें 45% एरिया एप्पल का ही है, परंतु जो प्रोडक्शन है वो 85% एप्पल का होता है टोटल प्रोडक्शन में। समय आएगा ऐसा कि ये हमारा जो मोनोपोली थी भाई पहाड़ों में थी एप्पल की, वो प्लेन्स में भी आएगी। आप जब पहले आए थे 1-1.5 महीना पहले, तो हमारा ये प्लांट में फ्रूट अभी कच्चा था और साइज़ भी थोड़ा छोटा था। तो अभी 20 से 22 जून के लगभग आप देख रहे हैं, तो ये हमारा फ्रूट पक गया है, और इसमें से बहुत सारा फ्रूट हमने मार्केट में सेल आउट भी कर दिया। ये हमारे लोअर हिमाचल की पोजीशन है। हिमाचल, लोअर और पंजाब में अभी ये फ्रूट हार्वेस्टिंग करके रेडी हो चुका है। चीन, जो सेब उत्पादन में पहले स्थान पर है, वहाँ ज्यादातर पौधे रूट स्टॉक से ही तैयार होते हैं। रूट स्टॉक इसलिए भी फायदे का सौदा है क्योंकि बगीचों के लिए जहाँ हिमाचल में जमीन की सीमित उपलब्धता है, वहीं आम बागवान तथा किसानों की जोत बहुत कम रह गई है। रूट स्टॉक पर भी पौधों को बड़ा बनाया जा सकता है। यह धारणा निरर्थक है कि रूट स्टॉक पर तैयार किए जाने वाले पौधे बड़े नहीं होते। यहाँ से हमारे सेब के पौधे श्रीनगर, हिमाचल, उत्तरांचल आदि पहाड़ी राज्यों में जाते हैं। बाकी लो चिलिंग का प्लांट जो है वो बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और हुशियारपुर तक लगाया जा रहा है। The plants of apple developed by this lab are 100% virus free, so these are attracting the farmers of apple from all over the India. The survival rate of this plant is 100%.